Jai Hind student, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. Today we are going to start with a new chapter, that is staffing. Okay, till now in the management function we have completed two chapters, that one planning and organizing. Okay, under the planning we have planned about the organization, which kind of the business we are going to do, what are the objective policy, how we will do the various activity and the function for completing the objective. All thing we are decided in the planning, and how we are going to execute according to the staff department that we have studied in the organizing. Today now in staffing chapter we are going to appoint the employee, because planning and organizing is just a worthless without the staff, right? Because all this thing whatever we done in the planning and organizing, that is in actually get activate in a staffing only. So let's see what are the main function of the staffing. Concept and importance. After having studied the first and the second function of management, the planning and organizing, it is now important to take care of third important function, that is staffing. Okay, it means that staffing it's your third functions of management. Okay, so let's go. The first one is your meaning. Staffing means appointing competent person according to the importance of the post in the organization. It means that a more capable person are appointed on a more important post, and comparatively less competent person can be appointed on a less important post. Simple meaning है, ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, उस डिपार्टमेंट में अलग अलग जो डेजिग्नेशन है, हायर, लोअर, मिडल, लाइक टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, देन आफ्टर दैट सीनियर, जूनियर, हाई पोस्ट, लोअर पोस्ट, अकॉर्डिंग टू दैट ओनली वी आर गोइंग टू अपॉइंट द एम्प्लॉय इन अवर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक. So according to the designation and the post, their qualification also refer, right? So it says that we are going to appoint the more capable person on the more important post, and the less capable person on the less important post. ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया. सिंपल मीनिंग है, अगर आप किसी मैनेजरियल पोस्ट के लिए किसी को अपॉइंट करेंगे तो व्हाट यू एक्सपेक्टिंग, हैविंग द गुड क्वालिफिकेशन एंड लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस इन पर्टिकुलर फील्ड, राइट? And the candidate, those who are fresher, not even join any organization, obviously you are not appointing such kind of the employee to higher post, right? This is the meaning of this line. Okay, now next, all the function undertaking to establish कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पोस्ट एंड द इंडिविजुअल कम अंडर द स्टाफिंग. सिंपल है, स्टाफिंग में करते क्या है, हम डेजिग्नेशन और इंडिविजुअल्स दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करते हैं. ठीक है. द चीफ अमॉन्ग दिस आर फर्स्ट रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, देन ट्रेनिंग, देन प्रमोशन, देन ट्रांसफ़र. ये स्टाफिंग के मेन कंपोनेंट्स है. सबसे पहले क्या है, रिक्रूटमेंट. इट मीन्स दैट सर्चिंग ऑफ एन एम्प्लॉय. ओके, फाइंडिंग द एम्प्लॉय, दैट्स कम अंडर योर रिक्रूटमेंट. वंस यू publish the vacancies of your organization in the newspaper, notice board, or somewhere else, after that so many candidates are apply for your organization. Out of that the best employee you are going to select, that is your second component, selection, right? After the selection, you are going to give the training to them according to work according to your organization, right? So that's why you are going to give the training to them, so that only they can work with your organizational structure. Once they got the training, after that they start doing their activity, and on the basis of their performance you are going to decide whether to do the promotion or to make the transfer somewhere else. Okay, this all we are going to study in details also in the next question. So let's start with the definition. According to NUDS, second one only you have to learn the name NUDS. Okay, this professor definition only you supposed to learn. According to NUDS, the managerial function of staffing involve the filling and keeping filled position in the organizational structure. Simple. What he said, that whatever organizational structure you have made under the organizing function, on that position, on that post designation, you have to appoint employee and keep all the structure fulfilled with the employee, because without employee the structure are not work themselves, right? That's why he's saying that
फिलिंग एंड कीपिंग द फिल्ड पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सिंपल है, जो भी आपने डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर वाइज बनाए हैं, ठीक है, वो एक्टिविटीज़ कब होंगी, जब वहाँ पे कोई काम करने के लिए होंगे एम्प्लॉयज़, राइट। सो यहाँ पे इसका मीनिंग सिर्फ इतना होता है कि आप जो भी स्ट्रक्चर बनाए हैं, हर एक स्ट्रक्चर पे पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करें, यही है स्टाफिंग, ठीक है। लेट्स सी द फीचर्स। The following fact clearly bring out the feature of the staffing of the function of the management. First one, related to human being. First important feature of staffing is its relationship with a human being. Obviously, staffing में जब भी हम candidates को appoint करते हैं employees को, so they are not the machinery, not a robotic, right? They must be the human being only. It means that unlike the planning and organizing, it is not mere paperwork but involve the appointment of competent person on the various posts. All the activities done to accomplish this work are connected with a human being. They may be recruitment, selection, training and promotion etc. क्या कह रहे हैं पता है, जैसे हम लोग ने प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग को पेपर वर्क पे कर देते हैं, ठीक है, वहाँ पे किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब ये है कि जो प्लानिंग बना रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, वो लोग तो रहते ही हैं, लेकिन उनके अलावा जो ऑर्गेनाइजिंग हो रही है, प्लानिंग हो रही है, उस फील्ड में, उस एक्टिविटी में ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट थोड़ी होती है, राइट। प्लानिंग करने वाले लोग ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं, लेकिन प्लानिंग की एक्टिविटी तो हम लोग पेपर वर्क पे ही बनाते हैं ना, तो वहाँ पे हमें ह्यूमन बीइंग नहीं चाहिए। लेकिन जो प्लानिंग बनाए हो, उसके लिए जो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर आपने तैयार कर लिया है, अब उन दोनों को एक्टिवेट करने के लिए एम्प्लॉय चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब ऑर्गेनाइजिंग होने के बाद स्ट्रक्चर बन गए, डिपार्टमेंट बन गए, अब वहाँ पे काम चालू करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स को अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये पूरी एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे चारों कंपोनेंट्स आ जाते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन। क्लियर हो गया। Next is separate managerial function. The second important feature of the staffing is that it is a separate managerial function. Separate managerial function means that far from being a major part of the some function, it is called itself a major function. सिंपल है, जैसे अलग अलग फंक्शंस होते हैं ना डिपार्टमेंट के, प्रोडक्शन फंक्शन, परचेस डिपार्टमेंट के अलग, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अलग, मैनेजरियल फंक्शंस अलग, तो वैसे ही ये स्टाफिंग भी जो है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। ये साइड जॉब नहीं है, ये साइड एक्टिविटी नहीं है, ये भी मेन एक्टिविटी है। इसके लिए हमने इसको भी एज अ फंक्शन नाम दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है एसेंशियल एट ऑल द मैनेजरियल लेवल। अब जो स्टाफिंग है वो किसी एक ही जगह होता है, बिल्कुल नहीं। ये जो एक्टिविटी है स्टाफिंग, ये मैनेजमेंट के तीनों लेवल्स पे होती है। देखिए, स्टाफिंग इज एसेंशियल एट ऑल द मैनेजरियल लेवल। इट मीन्स दैट द मैनेजर्स कंसर्न फ्रॉम दिस ऑल इम्पॉर्टेंट फंक्शन, सॉरी माई डियर, staffing is essential at all the managerial level. It must be clarified here that the establishment of the separate personnel department does not free the manager concerned from this all important function. The aim of establishing this department is to assist the manager at every level in the performance of their functions of staffing. क्या कह रहे हैं देखिए, स्टाफिंग इज एसेंशियल एट ऑल द मैनेजरियल लेवल। सबसे पहले तो मैनेजमेंट के जो तीनों लेवल हैं, ये तीनों लेवल में जरूरी है, पहला। Second, it must be clarified here that the establishment of the separate personnel department does not free the manager concerned from this all important function. यानी मैनेजमेंट को उनके फंक्शन में हेल्पफुल करने के लिए एक सेपरेट स्टाफिंग फंक्शन होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस है वो सबसे ज़्यादा स्टाफिंग पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। Next, fourth one is your related to social responsibility. Staffing deal with a human being and the main is social animal, right? Staffing किसके साथ डीलिंग करता है, ह्यूमन बींग के। तो ह्यूमन बींग कहाँ से आते हैं, सोसाइटी के एनिमल ही है, राइट। Since it is concerned with a human being, the social responsibility of this function is born. In order to discharge this responsibility, the manager should take care and impartial while going through the elite function of recruitment, selection, promotion, etc. यानी उनको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो एम्प्लॉयज़ को स्टाफिंग के लिए वो अपॉइंट करने वाले हैं, ठीक है, वो सारे के सारे सोशल एनिमल हैं, राइट। यानी कि अगर वो आज आपके एम्प्लॉय हैं तो कल वो आपके कस्टमर्स भी होंगे। तो जब भी आप सिलेक्शन प्रोसेस करो तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टाफिंग इज अफेक्टेड बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेस।
The internal environment of the enterprise include the policy connected with the employees like promotion policy, demotion policy, transfer policy, etc. If a matter of policy, the vacant posts are to be filled up by the promotion, the employee already working on the enterprises will have the opportunity to reach higher post, and the people from the outside will be appointed only on the lower post. In this way the internal policy of the organization does affect the function of the staffing. सिंपल है, क्या कह रहे हैं, ये जो स्टाफिंग फंक्शन है ना वो दो वे में अफेक्ट होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल भी, राइट। क्योंकि देखिए जो वैकेंसीज ऑर्गेनाइजेशन में आती है वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों वे से फिलअप की जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई सीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसी है, मैनेजर पोस्ट के लिए वैकेंसी है, तो ऑब्वियसली हम किसी फ्रेशर को अपॉइंट करने की जगह जनरली क्या सोचते हैं, जो हमारे यहाँ पे लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं, जो हमारे पुराने एम्प्लॉय हैं, उन्हीं में से किसी एक को प्रमोट करके मैनेजरियल पोस्ट दे दिया जाए। तो ये आपका इंटरनल हो गया, राइट। तो ये हो गया आपका इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट आपका क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ। ओके, the external environment affecting the enterprise including the government policy and educational environment. It can be policy of the government that in a particular enterprise employees should be recruited only through the employment exchange. Educational institutions can help in development of the employee by organizational special training camp etc. In this way external environment also affect the function of staffing. लेकिन क्या होता है अगर प्राइवेट ओनरशिप एंटरप्राइजेस है तो अभी तक जो हमने इंटरनल एनवायरनमेंट देखा ये सफिशिएंट है। लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट के भी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पर भी वैकेंसियाँ निकलती है, लेकिन वहाँ ये चीज़ अलाउड नहीं होता है कि वहाँ के जो भी मैनेजर्स हैं, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो हायर अथॉरिटी है, वो किसी को भी जॉब पे अपॉइंट कर ले थ्रू द रिक्रूटमेंट, राइट। यहाँ पे गवर्नमेंट के प्रोसीजर होते हैं कि दैट वेदर whatever the post is vacant in an organization you have to publish it, right, and उसके बाद कैंडिडेट को अप्लाई करने दीजिए। उसके बाद फिर एग्ज़ाम्स होते हैं। आपने जनरली देखा है गवर्नमेंट के कोई भी जॉब के लिए अगर हम जाते हैं तो एग्ज़ाम बेस पे ही होता है, फिर उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो जाता है जो एक्सटर्नली अफेक्ट करता है स्टाफिंग फंक्शन को, ठीक है। जैसे सरकारी ही ले लीजिए, सरकारी टीचर्स वगैरह की पोस्ट को ले लीजिए। आपको पता है अगर हम प्राइवेट स्कूल में जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ के प्रिंसिपल, जैसे हम लोग स्कूल वगैरह में जाते हैं प्राइवेट स्कूल, राइट, तो वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स रहते हैं वो हमें रिक्रूट करते हैं, एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट प्रोसीजर करते हैं। लेकिन अगर आप सरकारी स्कूल में जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे लेंदी प्रोसीजर होता है, कई एग्ज़ाम पास आउट करने होते हैं, कई इंटरव्यू देने होते हैं, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, राइट। तो ये हो जाता है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टाफिंग। वाई वी नीड द स्टाफिंग। फर्स्ट वन, हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग द कॉम्पिटेंट पर्सनल। सबसे पहले तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो पोस्ट, जो डेजिग्नेशन वैकेंट है उसके लिए कैपेबल एम्प्लॉयज easily मिल जाते हैं थ्रू द स्टाफिंग। अंडर द स्टाफिंग लेटेस्ट टेक्निक्स आर यूज फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय। एज अ रिजल्ट इट बिकम द पॉसिबल टू सर्च फॉर एंड सिलेक्ट एबल एम्प्लॉय फॉर डिफरेंट पोस्ट। यहाँ पे क्या होता है, जो हमें रिक्वायर्ड है वो कैंडिडेट ईजिली मिल जाते हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। Through the medium of staffing, right people are posted at a right place. Thus, suitable people are selected, keeping in the mind the importance of the organizational post. As a result, increase the efficiency and effectiveness of employees. सिंपल है, जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ है, राइट, उनको अच्छे से पता है कि हायर पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस बंदे चाहिए और जिनके पास हाई इंटेलिजेंसी हो। तो जब भी कभी हायर अथॉरिटी में वैकेंसी होगी तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नली अपॉइंट करने की जगह सबसे पहले इंटरनली ही अपॉइंट करेंगे, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होगा। इसीलिए क्या करते हैं सारे एम्प्लॉय है ना, अपना अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं ताकि उनका प्रमोशन हो सके। इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के सारे परफॉर्मेंस बेटर वे में होने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हेल्पफुल इन कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस। एवरी एंटरप्राइज एस्पायर फॉर इट्स कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि वो कंटिन्यू मार्केट में सर्वाइव करे और उसका ग्रोथ हो, राइट। दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज़ अ ह्यूमन एसेट्स ऑफ सुप्रीम क्वालिटी। ये तभी पॉसिबल है जब उसके ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉय उस कैपेबल हो, ठीक है। दिस एस्पिरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज कैन बी फुलफिल थ्रू द स्टाफिंग, और ये सिर्फ और सिर्फ स्टाफिंग के थ्रू पॉसिबल हो सकता है।
अंडर दिस कंटिन्यूस प्लानिंग इज डन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजर। इसका मतलब क्या है पता है? देखिए, अगर ह्यूमन कैपिटल यानी एम्प्लॉय, अगर ह्यूमन कैपिटल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल और ग्रोथ कंटिन्यू पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ये लोग कंटिन्यू प्लानिंग क्या करते हैं कि किस तरह से हम अपने एम्प्लॉय के स्किल एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकें, और उसी लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देती रहती है। ठीक है, they are made able to face the contingent complexity. This manager do the planning for the development of an organization and ensure its survival। क्योंकि देखिए, जो भी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उसको फेस कौन करता है? एम्प्लॉय, राइट। तो इसीलिए उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी को ईजिली हैंडल कर सके। Next, helpful in optimum utilization of human resource. Under the staffing, all the activities related to human resource are performed systematically. By doing this, the situation of overcoming the never arises. As a result, optimum utilization of employee take the place and subsequently labor cost is reduced. For example, क्या रहे हैं कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से आपके यहाँ पे जो रिसोर्सेज वेस्टेज होता है वो कम होगा और एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस के थ्रू आपके वर्क कंप्लीट होंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, बाय मेकिंग द एम्प्लॉयज़ अवेलेबल एट द राइट टाइम, द प्रॉब्लम हर्डल्स विच कैन बी अराइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्क कैन ईजिली बी ओवरकम। यानी अगर एम्प्लॉयज़ हैं और वो भी कॉम्पिटिटिव है, राइट, तो इससे क्या होता है कि जो भी हर्डल्स यानी रुकावट काम की आती है ऑर्गेनाइजेशन में, वो ओवरकम हो जाएगी और हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल ईजिली अचीव कर लेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, helpful in improving the job satisfaction and the morals of employee. Under the staffing, studying the human behavior, their preference for the type of the environment, protection and the training and the promotion, training, remuneration policy can be known, and effort is made to provide them a better desired facility. Special care is taken that in no way the pay package of employee reduce. In this situation they get the total job satisfaction. सिंपल है, क्या कह रहे हैं कि आपको एक काम ये करना है कि जो भी आपके यहाँ पे एम्प्लॉय है, पहले तो उनको जॉब सेटिस्फेक्शन देना है। जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब ये होता है कि पता है, एम्प्लॉय जब भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उनको इस बात की डर रहती है कि कहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन वाले हमें जॉब से निकाल ना दे, तो उनकी इस इनसिक्योरिटी को दूर करना, ये हो गया आपका जॉब सेटिस्फेक्शन। सेकंड है मोरल ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि उनको ऐसे ट्रीट करना जैसे वो आपके फैमिली है, उनका ख्याल रखना, उनके हर एक ज़रूरत का ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि देखिए आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, राइट, वो टोटली आपके एम्प्लॉयज़ पे डिपेंड करता है। अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा परफॉर्मेंस होगा, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन को ही सफ़र करना होगा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि स्टाफिंग क्या करते हैं, ये ध्यान रखते हैं कि एम्प्लॉयज़ की जॉब सेटिस्फेक्शन हो और उनका मोरल भी बना रहे। ठीक है, यहाँ होता क्या मालूम है, आपने कई बार देखा होगा कि हमारे घर में भी जो जॉब करते, राइट, उनसे पूछिए आप लोग कि उनको जहाँ पे वो जॉब करते, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशंस के पास अपने एम्प्लॉय के हर एक डिटेल्स होते हैं, इंक्लूडिंग द पर्सनल ऑल्सो, कि उनको कोई पर्सनली प्रॉब्लम है कि नहीं, इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम्स है कि नहीं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी इन्फॉर्मेशन क्यों रखती है पता है? ताकि इन फ्यूचर अगर आप किसी भी प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रेस्ड आउट होते हो और उसका इफेक्ट अगर वर्क पे होने वाला है तो वो उस सिचुएशन से आपको बाहर निकाल सकती है। क्योंकि एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में तभी हैप्पीली काम करते हैं जब उसके पास अपना पर्सनल भी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन ध्यान में रखती है कि अपने एम्प्लॉय का पूरी तरह से ख्याल रख सके। ठीक है, तो अभी हमने स्टाफिंग फंक्शंस के मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स और इम्पोर्टेंस आज कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कंक्लूजन फ्रॉम द aforementioned reason. It is quite evident that today human resource is the basic of the success of an organization. Of course, आज हम अगर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, ठीक है, तो उसका टोटल क्रेडिट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर का टोटल क्रेडिट सक्सेस होने का जाता है सिर्फ आपके स्टाफिंग फंक्शन, क्योंकि स्टाफिंग के बगैर चाहे कितनी भी अच्छी प्लानिंग आप कर लीजिए, इट्स वर्थलेस अगर आपके पास स्टाफ प्रॉपर नहीं है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स ही ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस का मेन पिलर है। दिस इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर फिजिकल रिसोर्स, दस all has a significant role to play in the function of management, so it become the very important focus on this function of management. इसलिए क्या कहा गया है कि सारे फंक्शन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें किस पे देना है, स्टाफिंग फंक्शन पे। क्लियर हो गया? इफ़ यू हैविंग एनी डाउट स्टूडेंट, यू कैन आस्क मी इन द इवनिंग शेड्यूल। होमवर्क, फीचर्स
an importance explanation, write by your own and send me in the WhatsApp group personally. Okay, have a nice day, stay home, stay safe, take care. Jai Hind everyone.